ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭೋಗ್ಲೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ತೇರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ರಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವನ್ನ ತಾವು ತೋರಿಸಿದಿರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ, ಈ ನಾಡು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕೋವಿಡ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದು ದೇಶವನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 6.5% ಗ್ರೋತ್ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವೊಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ 200-300 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೀಣ ಇರುವಂತಹ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಾವಿರಾರು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಉಳಿದಿದೆ, ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇಶ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, बसेश्वर पंच कमेटी के देवस्थान के कमेटी के सदस्यगण माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सम्मान कर रहे हैं. धन्यवाद. दोनों समाज के प्रमुखगण, बसेश्वर देवस्थान कमेटी के सभी सदस्यगण, गृह मंत्री और सहकार मंत्री देश के माननीय अमित शाह जी का सम्मान कर रहे हैं. अभी हम सभी के प्रेरणा स्थान देश के गृह और सहकार मंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्थान माननीय अमित शाह जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हम सभा को संबोधित करें. भारत माता की. अरे भाई, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. पूर्ण बहुमत की सरकार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी, हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी अभी एक कल्याण कर्नाटक के लिए अपने बजट में हजारों करोड़ रुपया देने का काम किया है, ऐसे बसवराज मुंबई जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जी, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा जी, हमारे सांसद श्री उमेश यादव जी, श्री प्रभु चौहान जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री रामलू जी, रघुनाथ मलकापुरे जी, सिद्धराजू जी, श्री रवि कुमार प्रदेश महासचिव, श्री राजकुमार तेलकुर माननीय विधायक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक खड़े हो जाओ भाई, सानू सालगार जी, हमारी सहप्रभारी, इसी को चुनना है तो आपको, हमारी सहप्रभारी बहन डीके अरुणा जी, और आज बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आज जगत ज्योति बसवन्ना की एक कर्म भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आपका जोश, आपकी संख्या, आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने वाली है। कल ही कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। नागालैंड में 0 सीट, कितनी सीट? जोर से बोलो, कितनी सीट? मेघालय में 3 सीट, कितनी सीट? और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीट, कितनी सीट? अब मुझे बताओ भाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बन सकती है क्या? जिस उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती, वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। ये मोदी जी का जो जादू है ना, मोदी जी का जादू, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह सर चढ़कर बोलता है। मुझे बताओ कर्नाटक वालों, आप लोग मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा को जिताओगे या नहीं जिताओगे? मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब जगत ज्योति बसवेश्वर ने यहां पर दुनिया भर को लोकतंत्र का संदेश देने का काम किया। दुनिया में पहली संसद अगर कहीं पर मिली तो हमारे ये बसव कल्याण के अंदर मिली। और मोदी जी ने गौरव के साथ इस बात को यूएन के मंच से
छाती फुलाकर पूरी दुनिया के सामने बसवन्ना का वखान करते हुए करी है। ये भूमि को बसवन्ना के सैकड़ों साल पहले लिए गए लोकतंत्र के लिए इनिशिएटिव को हमारे येदुरप्पा जी ने 600 करोड़ रुपया देकर हमारे बसवराज जी ने इसका काम आगे बढ़ाकर हमेशा के लिए बसवन्ना के संदेश को दुनिया में पहुंचने का काम किया है। मैं इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं जहां पर लोकतंत्र की बात। ये भूमि गुरु नानक ने भी दूसरी उदासी में यहां पर आए थे। मैं अभी गुरु नानक साहब की स्मृति में बने गुरुद्वार साहब में मत्था टेक कर आया हूं और यहां से जाकर बसवन्ना को श्रद्धांजलि देने अनुभव मंडप में भी जाने वाला। यहां के नरसिम्हा मंदिर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और यहां पर जो 800 साल से बसवन्ना ने लोकतंत्र का यज्ञ चालू किया है, आज मोदी जी इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। यहां पर हमारे लंबानी समाज के बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं। अभी दिल्ली में आपका एक कार्यक्रम था, उमेश यादव जी मुझे ले जाने वाले थे मगर मैं आया नहीं, पहुंच नहीं पाया। लंबानी समाज वाले को कहना चाहता हूं, हमारे उमेश जी इस चुनाव में मुझे कलबुर्गी ले जाएंगे, तब वहां कर सेवालाल जी महाराज को प्रणाम करने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों बहनों, आज यहां से विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये विजय जो है, जिसका संकल्प लेना है, वो विजय भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं है। वो विजय हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प नहीं है। ये विजय संकल्प यात्रा है कर्नाटक के गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण करने का संकल्प लेकर हम निकले। ये 4 यात्राओं के माध्यम से कर्नाटक के विकास का गुणगान करना है, जो बाकी छूट गया है उसको पूरा करने का संकल्प लेना है और विकास का गुणगान करते करते कर्नाटक की संस्कृति और इतिहास को भी लोगों के पास पहुंचाना है। 4 हिस्सों में ये विजय संकल्प यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यहां से जो शुरू हो रही है वो विजय यात्रा बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और विजयनगर में स्थित 43 विधानसभाओं में घूमकर 43 की 43 सीटों पर भाजपा के विजय का संकल्प दिलाएगी। मित्रों, हम इस विजय संकल्प यात्रा से 31 जिले और 224 विधानसभाओं का 8000 किलोमीटर का रूट यहां से समाप्त करेंगे। यहां पर 100 से ज्यादा अधिक रोड शो होंगे, 80 से 100 ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं होगी, 600 से ज्यादा रोड पर सभाएं होगी, 200 से ज्यादा समाज की बैठकें होगी और 50 से ज्यादा भाजपा के देश भर के नेता कर्नाटक की जनता को प्रणाम करने के लिए आएंगे। और मैं आज 3-4 दिन से एक कांग्रेस वालों के बयान देख रहा हूं। मित्रों, ये लोगों के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं।
मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये आप पार्टी वाले कहते हैं मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। और सुन लीजिए कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसी मोदी जी के लिए अपशब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता। आजाद ही न। सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन कर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के एक हिस्से का नाम, जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 371J को रिलीजियसली पालन करने का काम किया है। हमारी सरकार ने पहले 3000 करोड़ रुपया दिया था स्पेशल पैकेज, और इस बजट में, जोर से ताली बजाना, इस बजट में बसवराज जी ने 5000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी ने, कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए एटीएम बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, होना चाहिए। ये जेडीएस और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, वो कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। और मित्रों, ये जेडीएस को तो जो 25-30 सीटें मिलती है ना, लेकर सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं। आपका वोट वेस्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हमने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्तों की फौज है, तो दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक और हम यहां पर रानी अबक्का, मतकारी नायक और कैंपे गौड़ा का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर पीएफआई के आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है।
बताओ भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने PF5 पर बैन लगाया, ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? मित्रों, ये डबल इंजन सरकार जो डबल स्पीड से काम कर रही है, उसको आप एक बार मौका दीजिए।